Okay, all of you, welcome to the session. Today we will be taking doubts on carbon and compound. So as we have discussed, we have come to know from you that we are mainly stuck in these three topics: soap and detergent, nomenclature and isomer. और इसमें हम सबसे पहले हम nomenclature टॉपिक को लेंगे, देन आइसोमर जो कि स्मॉल टॉपिक है, और देन सोप्स एंड डिटर्जेंट को क्विकली इसको कवर अप करेंगे, राइट? सो और आई विल बी टॉकिंग ओनली जहां तक आपका सिलेबस है, हम थोड़ा उससे ऊपर नहीं जाएंगे, ठीक है ना? बिकॉज वी आर नाउ क्लोज टू समवट बोर्ड, सो एक्स्ट्रा नॉलेज इज ओके. एक्स्ट्रा नॉलेज आई वांट, वी मस्ट हैव. डिफिकल्टी इन आइसोमर एंड मेकिंग अदर कंपाउंड्स एंड नेमिंग देम, राइट हस्ती? वो टॉपिक्स ले रहे हैं. Good evening. Okay, so let us start. Okay, so first our point will be, let me check if I had started the recording. Yes, okay. So everything is getting recorded and it will be available on Prakash Soni Oda class. ठीक है? So अभी सभी को चेक किया करिए, है ना? Now, if you want to connect on social media, Instagram पे प्रकाश KR सोनी के साथ दिख जाएंगे. Now coming to the point, nomenclature. ठीक है? So if I talk about nomenclature, so first we come to know about hydrocarbons. So सभी को hydrocarbons के बारे में पता है? What are those hydrocarbons? Yes, sir. हाँ बताइए, fast all of you. फास्ट बच्चा, आपको हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पता है तो बताइए. Hydrocarbons are the compound formed by a combination of carbon and hydrogen only to gain stability. Exactly. They have only carbon and hydrogen. They are the simplest carbon compounds. Carbon along with hydrogen. One is alkane. So alkane में नेम कैसे होता है? One carbon के साथ मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, like that. सबको पता है इसके बारे में? Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. Yes. श्रेयांश, बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है बच्चा, साइलेंट कर लीजिएगा. ठीक है. सो अल्केन, देन इफ आई वांट टू, अल्कीन का फर्स्ट मेंबर क्या होता है? व्हाट इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन? Ethene. इथीन, है ना? एग्जाम में गलती से मिथीन नहीं लिख लेना, है ना? इथीन इज द फर्स्ट मेंबर. इट इज ओके. सी द डायग्राम. इट इज ओके. Yes, sir. डायग्राम ओके है? No, sir. No, sir. If we have कार्बन, हाँ, कार्बन हैज 4 हैंड्स. कार्बन, एग्जैक्टली, कार्बन हैज 4 हैंड. इट इज टेट्रावैलेंट. सो कार्बन के पास अगर टेट्रावैलेंट, इफ आई टेक दिस सी, दिस हैज 4 हैंड, 1 2 3 4. अभी एक्स्ट्रा लाइन नहीं. एंड इफ आई टॉक अबाउट अल्काइन, व्हाट इज द फर्स्ट मेंबर? ethyne. इथाइन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड. ओके. सो इफ आई टॉक अबाउट कंबशन के पॉइंट ऑफ व्यू से विच वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट? अल्केन, अल्कीन और अल्काइन. सबसे इजीली कंबस्टिबल कौन है? Alkane. Alkane. Why? Bond. बिकॉज वो ब्लू फ्लेम देते हैं. ब्लू फ्लेम देते हैं. अल्काइन भी तो ब्लू फ्लेम दे सकता है ना? Saturated No, sir, carbons and because they unsaturated are hydrocarbons. saturated. These are single bonded and they are easily getting separated. Okay. Others answer? You know, I am asking NCERT question actually, directly. This is your in-text question. Saturated means blue flame, unsaturated means yellow and sooty flames. Fine. All of you, I'm giving answer. Okay. Okay. Fine. So alkane, if you talk about alkane, second member is who? Ethane, right? Ethane. So ethane will be C2H6. Alkene will be what? C2H4. H4. Four. Alkyne will be C2H2, right? Yes, सभी sir. को एग्री है ना? इस पर एग्री है? Yes, sir. आई एम गिविंग यू आंसर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल क्वेश्चन. ओके. सो इस पर 1:3 है, राइट? 2:6. कार्बन इज 2:6. इसमें कार्बन रेशियो इज 1:3. श्रेयांश, समझ में आ रहा है? फॉर 1 कार्बन Yes. देयर इज 3 हाइड्रोजन. Here if you cut the ratio 1:2, so 1:2. carbon is to hydrogen is 1:2, right? Yes, एक sir. कार्बन Yes. पे 2 हाइड्रोजन. और यहाँ कार्बन इज टू हाइड्रोजन रेशियो इज 1:1. 1:1. So, Yes, so sir. as you are seeing that if you are moving from alkane to alkene to alkyne, what is happening? Here hydrogen percentage is Hydrogen is 75%. Here hydrogen percentage is 66%, 66.66.
and here hydrogen Okay. percentage is 50%. So as we are moving from alkane to alkyne, the percentage of hydrogen is decreasing, Decreasing. Decreasing. and the percentage of carbon The same. Remains Remains. same. here 50% is carbon. So as the percentage of here carbon is only 1:3, so it means 25% is carbon. Here carbon is 33.33, and here carbon is 50%. So as the carbon percentage increases, there is difficulty in combustion. और you know कि alkene में आपको specially oxygen provide कराना पड़ता है. All of you know about acetylene. सभी को पता है acetylene के बारे में? Yes, sir. No, sir. Which compound is called acetylene? किसका common name है? C2H2. Exactly. बच्चा अजीब बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है, ध्यान दीजिएगा. साइलेंट ऑल ऑफ यू, फोकस मी. इथाइन का ही कॉमन नेम एसिटिलीन है, रिमेंबर इट. एसिटिलीन यू नो वेल्डिंग में यूज होता है, राइट? दे यूज ऑक्सीजन सिलेंडर आल्सो सेपरेटली. Why they are using separate oxygen cylinder? Because see, in alkyne, the carbon percentage is now 50% and hydrogen is only 50%. So you need a separate supply of oxygen. But here already see in this alkane, you know, घर में आप LPG यूज करते हैं ना, कौन सा गैस होता है उसमें? Alkane. अल्केन में कौन सा? Methane. Methane. मैक्सिमम क्या होता है? Methane. Natural gas. एनीवन बच्चा? ब्यूटेन में कौन सा गैस होता है? आप किसी को पता होगा? Methane होता है. वो मिनिमम Sir, अमाउंट होता है. petroleum gas. बच्चा ऑल ऑफ यू आर व्हाट डूइंग? तो बच्चा पहले तो CNG. बैकग्राउंड ऑफ करिए, है ना? साउंड नहीं आना चाहिए. अगर बैकग्राउंड आपका अगर on, है ना, नहीं आना चाहिए. बच्चा एलपीजी में कौन सा गैस होता है? आप लोग को नहीं पता? The petroleum gas. ब्यूटेन. The propane भी. यू आर इन क्लास 10th बच्चा. यू आर नॉट नोइंग कि आपके गैस घर में जो किचन में सिलेंडर रखा उसमें कौन सा गैस है? इट्स ब्यूटेन. फॉर्मूला C4H10. ठीक है, ध्यान दीजिए क्या पढ़ रहे हैं ना, ये सब स्टैंडर्ड आपको मेंटेन करना होगा ना. यू आर ए क्लास 10th स्टूडेंट, राइट? सो इट्स ब्यूटेन. अगर आपको नहीं पता, आप चलते चलते कोई पूछ लेगा आपसे, भैया जी सुनिए ना, आपके एलपीजी में कौन सा गैस है? क्लास 5 का बच्चा पूछ देगा 6 का, ठीक है ना? इट्स ये बात बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना? यहीं तक फिनिश हो जाना चाहिए. व्हाट इज द गैस इज इन सिलेंडर? Butane. ब्यूटेन, खाली राइट? ब्यूटेन होता है नहीं सर. नहीं, खाली ब्यूटेन नहीं होता है, सिर्फ ब्यूटेन नहीं होता है. मैक्सिमम Isobutane. 75% ब्यूटेन होता है. देन देयर इज मीथेन, और Isobutane तब भी आप होता है. बोलिए, ठीक है? तब आप लगे, बट आप मेन नेम नहीं बोलोगे ना 75% ब्यूटेन, तो गड़बड़ है. तो अल्केन में क्या है? आप अल्केन्स में जैसे ब्यूटेन्स है, राइट? उसमें आपको आप एक स्पार्क देते हो और बर्न कर जाता है. व्हाई? बिकॉज दे हैव carbon only 75% and 75% hydrogen, so they can easily combustible. But when you move to alkane to alkyne, the hydrogen percentage is decreasing and carbon percentage is increasing, so it's getting difficult for oxidation. So you are supplying along with ethine, you are supplying oxygen cylinder. आप कभी दे करके देखे हैं जहाँ वेल्डिंग होता है? they used to provide this acetylene, that is ethine, with oxygen cylinder. किसी ने देखा है? No, sir. Oh, No, it's sir. it's not good. It's No, not sir. good. ठीक है ना? आप लोग का प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन कहाँ है? ठीक है ना? आपने वेल्डिंग करते देखा होगा ना? They have. Yes, Kaustav? sir. Yes, Kaustav, sir. आपने भी नहीं देखा? Sir, that shield they put in front of the head, and then that is connected to some dabba, and that is like light is coming out. वो ठीक है, वो तो ठीक है, but you should know ना कि उनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, right? So come to the point. I am now coming to next point. One is hydrocarbon, alkane, alkene, alkyne, we know. Now come to the next point. We know about halogens, like carbon, Yes, carbon, sir. carbon, and this one is chlorine, HHH. What is its name? Chloromethane. Chloromethane. So अगर हेलोजन में कौन सा आता है? High क्लोरीन, ब्रोमीन. दिस इज ओनली योर सिलेबस, यही आएगा. और मैक्सिमम हो तो आयोडीन. सो यू विल नेम इट एज chlorine there na, you will write chloro, CHLORO, chloro. Methyl. Methane. 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 What will be its name?
Bromoethane. Bromomethane. ब्रोमोमीथेन, क्लियर है? वी कैन मूव, राइट? और यही आपका सिलेबस है. मूव टू नेक्स्ट. इफ यू सी दिस वन, दिस ग्रुप OH, सर आयोडीन के लिए क्या लिखेंगे? आयोडो, IODO, आयोडोमीथेन, आयोडोब्यूटेन. समझ में आ गया? ओके सर. नाउ कम टू दिस. इफ यू सी दिस वन, अगर आपको ऐसा कुछ दिख जाए, दिस इज व्हाट? मिथेनॉल. Methanol. Especially this functional group is called Alcohol. alcohol बोलते हैं, but this group is especially called hydroxyl group. Hydroxyl group. ठीक है ना? So Okay. जहां भी आपको ये hydroxyl group दिखता है, this is alcohol, right? You know alcohol ना? Alcohol, you know, all of you जो Yes. alcohol drink करते हैं, वो कौन सा उसका formula? Ethane. Ethane. Ethanol. Ethanol formula? Ethanol. Exactly. Fine. So we should move that ethanol is C double carbon with one is OH. So now fill up hydrogen. So all of you can name now whatever the, see there is 2 carbon. So हम वो क्या करेंगे? 2 carbon. So eth plus ol. In the last you will write ol. So name will be ethanol. EGPG. What is its name? Yes, बताओ yes, इसका जल्दी sir. से name बताओ क्या है? Butanol. Butanol. Move. Next, if you see this group COOH group, or you can see write this one double bond O. अगर ये group दिखता है, this group is Carboxylic acid. it is carboxylic acid, है ना? It is the symbol of carboxylic acid. So how you name this one? Can anyone tell? I'm just taking one carbon. What is its name? Ethanoic acid. One carbon is with meat plus oic acid, right? बच्चा बैकग्राउंड नॉइस ठीक है रखिए. अगर बैकग्राउंड से आपके साउंड है तो उसको mute रखिए. Methanoic acid. मिथानोइक एसिड. आप अगर आपसे पूछा एग्जाम में, यू नो एंड्स जब बाइट करती हैं तो कौन सा एसिड ड्रॉप करती हैं? Methanoic acid. कॉमन नेम ऑफ मिथानोइक एसिड? Formic acid. वेरी गुड. इट शुड बी Formic आपके एसिड बेसिड से क्वेश्चन आ सकता है ये. दिस इज ओनली कॉल्ड फॉर्मिक एसिड. ठीक है ना? आप फॉर्मिक एसिड क्या होता है? टीचर को तो पढ़ाया ही नहीं था. यही है फॉर्मिक एसिड. ठीक है ना? एंड अदर वन इज दिस वन फॉर्मिक एसिड. ये एग्जाम में आता है. वन इज लाइक C double bond OH. What is its name? Ethanoic acid. Ethanoic acid. It is two carbon. So ethanoic acid and it has a common name. जैसे आपका घर का नेम होता है ना, चीकू, मीकू, टिकू, है ना? Like इसका भी एक घर का नाम है. क्या नाम है इसका? Common name? Acetic acid. Exactly, Acetic acid. Sharanpreet. Acetic acid. एसिटिक एसिड को कौन सा क्या बनाने के लिए यूज करते हैं? एसिटिक एसिड. Vinegar. वेरी गुड. इट Vinegar. शुड बी आल्सो इन योर एग्जाम. विनेगर में कितना % एसिटिक एसिड होता है? 5 to 8%. 8%. दिस इज आल्सो योर एग्जाम क्वेश्चन. गुड. ऑल ऑफ यू क्लियर ना? Yes, sir. नाउ नेक्स्ट ग्रुप वी हैव कवर्ड कार्बोक्सिलिक एसिड. देन और आपको नोमेनक्लेचर में ज्यादा कुछ नहीं आता है, यू नो, आपको ज्यादा कुछ नहीं आता है. Any other group is left? Carboxylic acid, then alcohol. We have Ketone. covered. Sir, Ketone. Now, aldehyde. Ketone is ketone. So if we see this ketone has this one, right? And one more is aldehyde, right? Only 2 are left. Okay? Ketone Yes. and aldehyde. See how you will find this. This is the group. When you see this one, you will find it as. ketone. In the center. If you see this one, this is symbol of Q. है ना? Ketone. Remember हो गया? Ketone. Now, Yes. what is the first member of ketone? First member of ketone. Propanol. Propanone, right? Yes, sir. Prop Yes, plus. sir. If you see this ketone, on, right? Pro plus on. So, Propanol. propanone. So, if I ask you why there is no ethanone क्यों नहीं होता? Can anyone tell?
सर बिकॉज जो because डबल the- बॉन्ड है फिर वो चेन के सेंटर में नहीं होता और उसके लिए इट तो इज triple नॉट अ bond जरूरी है। टर्मिनल ग्रुप। ठीक है, कॉस्ट ऑफ टेल अगेन। उसके लिए ट्रिपल बॉन्ड का जरूरत है ना। हाँ नहीं, ट्रिपल बॉन्ड कहीं जरूरत नहीं है। देखिए तो कीटोन में तो यहाँ डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड का जरूरत नहीं है। सी आई एम टेलिंग सर इट इज नॉट अ टर्मिनल या ओके। ग्रुप। जैसे जस्ट अ सेकंड गाइस, थोड़ा रुकना पड़ेगा, आई हैव टू चेंज द प्लेस। ठीक है, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। ओके, ऑल ऑफ यू कंफर्टेबल टू हियर मी? सभी कोई कंफर्टेबली हमको सुन सकते हैं? ऑल ऑफ यू कैन हियर मी Yes, sir. कंफर्टेबली? Yes, sir. ठीक है, स्टार्ट Yes, करते हैं। Yes. सो आई वाज टॉकिंग अबाउट व्हाट, हाँ इथानॉन क्यों नहीं होता है, राइट? जस्ट अ सेकंड, आई एम चेंजिंग नेटवर्क आल्सो सो दैट नो प्रॉब्लम कैन कम। just a second. फाइन, सो वी शुड स्टार्ट कि इथानॉन क्यों नहीं होता है, राइट? सो इफ आई टेक इथानॉन, इथानॉन में 2 कार्बन होगा ना? सर योर वॉइस इज ब्रेकिंग। जस्ट ओके ओके, आई हैड ओके फाइन। सो IUPAC क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, है ना? सो नाउ कमिंग टू नोमेनक्लेचर, अगर हम नोमेनक्लेचर का बात करते हैं तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि चेन कौन सा है, राइट? So all of you, I am giving some examples. This one is 1, this one is 2. ठीक है? Is there any difference between 1 and 2? Yes, sir. What is the difference? Sir, first Structural one is difference. सर बोथ आर second सेम। one is the Both are Both are same. same. Difference. Both are same. Both are दोनों same. में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना? सर सबसे पहले स्ट्रक्चरल आपको यही डिफरेंस समझ- तो होगा। देखिए सबसे पहले ये नोमेनक्लेचर के एस्पेक्ट में जब हम नेम दे रहे हैं ना, तो ऐसे सिंपल बैंकिंग का कोई Okay, मतलब sir. नहीं है। क्यों? देखो सबसे पहले इसमें कोई ब्रांच है ही नहीं। अगर आप जस्ट अ सेकंड, देखिए अगर आप कोई चेन लेते हो तो चेन स्ट्रेट होता है, राइट? चेन स्ट्रेट होता है, राइट? सो अगर आप इस तरह चेन लोगे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7, राइट? ये एक चेन में है, राइट? इसके बेंडिंग, यहाँ बेंडिंग हुआ और यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये दोनों में कोई फर्क नहीं है। क्यों? अब मेरे को पेन उठाना पड़ा, No, sir. मेरे को पेन उठाना No, पड़ा। sir. अगर पेन नहीं उठाना पड़ा, वो एक चेन दोनों सेम है नेमिंग के एक्सपेक्ट में, जब नेमिंग कर रहे हैं। बात समझ में आया आदित्य? ये बात समझ में आ रहा है? दोनों सेम कंपाउंड है, बेंडिंग करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है? तो नाउ सबसे पहले क्लियर कर लिए पॉइंट कि बेंडिंग होना सिंपल ऐसे नहीं होगा। अब फिर अब कंफ्यूजन होगा स्टार्ट, तो हम आपको क्वेश्चन से क्लियर करते हैं, ठीक है? लेट इट दिस वन 1 2 3 4 5 6, ठीक है? अभी देखो यहाँ पर एक चीज आता है ब्रांच, यू नो, जैसे देयर इज अ वन स्मॉल प्लांट और इसमें ब्रांचेस लिखे हैं। सो मेन जो है, ये मेन आपका ब्रांच है, आपको हैंड अपना उठाना नहीं पड़ रहा है, राइट? बट जहां अगर आप इस ओर जाना चाहोगे, फॉर सपोज इफ आई वांट टू गो दिस वे, राइट? For suppose I take this one, for suppose कि मैं अपना हैंड ना इधर लेके जाता हूँ, आई एम रिपीटिंग अगेन, अगर मैं ये हैंड लेकर के गया, सो सर प्लीज थोड़ा सा जस्ट
सो प्लीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ ये जो ब्रांच है ना, ये जो मेन चीज है ना, इसको अगर आप कंसीडर करते हो तो आपका क्या लीव हो गया, ये पोर्शन और ये पोर्शन लीव हो गया. सो दीज आर ब्रांचेस. अभी समझाते एक और ऑप्शन से, ठीक है ना. अब फॉर सपोज आई एम गिविंग प्रैक्टिकल एग्जाम, है ना. जस्ट अ सेकेंड, लिटिल बिट ऑफ डिस्टर्बेंस आ रहा है. सो इफ आई टेक दिस वन, अगर हम इसको लेते हैं, राइट अर्शिया, देखिए अगर हम इसको लेते हैं तो दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन हैज बिकम ब्रांच. मतलब क्या कहना चाहते हैं, सी इफ आई टेक दिस वन 1 2 3 4 5, दिस वन इज एक्टिंग एज ब्रांच. सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. If I take Yes, sir. another example, for example, इसी को लेते हैं. अगर ब्रांच आप किस किस एस्पेक्ट में ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है. सो अगर आप इसको लोगे, देन आपका ब्रांच कौन सा हो जाएगा, दिस विल एक्ट एज ब्रांच. लवन्या, ये बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. नाउ द क्वेश्चन इज कि आप हम ब्रांच किसको कंसीडर करेंगे. आई विल कंसीडर दिस वन और आई विल कंसीडर दिस वन. तो अब आपका आंसर आएगा, सी हाउ यू विल कंसीडर. अगर आप जो आप मेन आपका ब्रांच होगा ना, जो मेन आपका चेन होगा, दिस पोर्शन, जस्ट अ सेकंड, दिस वन इज मेन चेन. ये longest होगा. एग्जैक्टली ये जो मेन चेन होता है ना, वो लॉन्गेस्ट होता है. इफ यू चेक दिस वन, इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, राइट. अगर आप इसको मेन चेन लेते हो, ये इसको मेन चेन लेते हो, तो 1 2 3 4, यहाँ ओनली 4 कार्बन है, यहाँ 5 कार्बन है. सो किसको कंसीडर करेंगे, इसको, नॉट दिस वन. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर. Yes, Yes, sir. sir. Now I'm giving an example. We are close to session, right? 1 2 3 4 5. Write the code of today. Start C. Start C is the code of today. हम इसको सेशन को कंटिन्यू करेंगे. Write the code. Start C. C means carbon. Start carbon. What is the code of today? Start carbon. ठीक है. So now 1 2 3 4 5 6. ठीक है. अब देखो इस सिचुएशन में मेन चेन किसको लेंगे, The upper one with 5 carbons. इफ आई टेक दिस वन, अगर हम इसको लेंगे 1 2 3 Sir, 4 both 5, can be taken. तो ये ब्रांच आएगा, राइट. Yes, एंड sir. इफ आई टेक दिस वन, आई एम राइटिंग अगेन 1 2 3 4 5 एंड 6. और अगर इफ आई एम टेकिंग दिस वन 1 2 3 4 5, अगर हम इसको लेते तब कौन सा आएगा, ये. सो Yes, sir. अब लावण्या ने Yes, बोला sir. कि जिसमें कार्बन चेन में मैक्सिमम कार्बन होगा, ठीक है ना. सो अब देखो, अगर आप इसको कंसीडर करोगे तो 1 2 3 4 4 एंड 5, राइट. सो इसके चेन में भी 5 कार्बन है लावण्या. अगर आप इसको लोगे 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ भी 5 कार्बन है इसके रेस्पेक्ट में. Sir, यानी I said the longest chain. अगर आप इसको चेन कंसीडर करो तो यहाँ भी 5 कार्बन है, यहाँ भी 5 कार्बन है. तो हम किसको लेंगे, इसके Sir, रेस्पेक्ट. the first one. देखिए दोनों सेम ही है, एक्चुअली दोनों सेम ही है, दोनों में कोई फर्क किसी नहीं. को भी ले सकते हैं. अब सवाल, हाँ किसी को भी ले सकते हैं, लेकिन अब सवाल है कि नंबरिंग किधर से होगा. ये जो 1 2 3 4 नंबरिंग है, तो ब्रांच, यहाँ देखिए ब्रांच 4 नंबर पे आ रहा है राइट और यहाँ भी 4 पे आ रहा है. right. बट आपको ब्रांच किस पर लेना है, मिनिमम नंबर कम आना चाहिए. सो यू विल टेक इट फ्रॉम हेयर, जस्ट अ सेकेंड, आई एम टेकिंग फ्रॉम, इफ आई क्लियर दिस वन, so see this one 1 2 3 4 5. अगर हम नंबरिंग ऐसे करते हैं तो सी दिस ब्रांच इज कमिंग ऑन 2 नंबर, जबकि हम उधर से कर रहे थे तो 1 2 3 4 नंबर पे आ रहा था. तो ब्रांच हमें किस नंबर पे लेना है, मिनिमम नंबर पे लेना है. सो इट विल बी 2. इट इज मिथाइल 2-methyl pentane. 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 2-methyl pentane. 2 मिथाइल पेंटेन. ठीक है ना.
बच्चा आई विल कंटिन्यू टुमारो, ठीक है ना, इसको टुमारो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो लिटिल बिट डिस्टर्बेंस हो गया प्लेस के कारण, कोई बात नहीं, ठीक है। राइट द कोड ऑफ टुडे, स्टार्ट सी, ठीक है ना, और पढ़ाई पे एकदम बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना आप लोग। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए बोलिए अर्चिया। सर मैंने आपको क्वेश्चन सेंड किए थे, आपने सर वो तो डायरेक्टली कॉल करिए है ना सेशन के बाद, ठीक है। और आज सबको ओके टेस्ट सर। देना है, देखिए टेस्ट जो हो रहा है ना, अपना अपने आप को एनालिसिस करिए, ये नहीं सोचिएगा कि हाँ मेरे को ये आता है नहीं है वो नहीं आता है, इतना सोचने की जरूरत नहीं है, सब आपका असेसमेंट ही हो रहा है ना। ट्राई करिए क्वेश्चंस को, ठीक है ना। सभी को आज आपका आई थिंक ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, ठीक है ना। तो जो भी टेस्ट है अपना जितना आपको आता है एटलीस्ट उतना अटेम्प्ट करिए, ठीक है ना, है ना। ठीक है बच्चा, ऑल ऑफ यू जॉइन योर सेशंस, है ना, ओनली वन सेशन इज टुडे। Yes, sir. Thank you, sir. कीप स्टडीइंग। Thank थैंक you. यू सर। बाय अर्चित, बाय Thank you, मिसिता, sir. बाय श्रुति, बाय तेजस्विनी, बाय तन्वी, बाय मिसिता, Bye, sir. बाय बाय ऑल ऑफ यू, मिलते हैं, बाय पृथ्वी।